आपको लगन से काम करना है अपने शरीर के ऊपर. So you will be working on yourself with breath hold techniques. Something very, very new for most people. Some people who are in yoga, they must have heard about Kumbhak, but the Kumbhak you do in yoga and what we teach in Ashtanga Chikitsa is very, very different, because here we are therapeutically using Kumbhak to heal yourself from within. तो हम लोग अभी जानते हैं कि किस तरह से आप अपने करंट प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते. Pankaj sir has already written, and I'm sure there are so many people who are probably not writing but are suffering from a lot of other problems like knee pain, frozen shoulder, especially the ladies post menopause. They see a lot of suffering, a lot of joint pain, lot of osteoporosis. तो इन सब चीजों का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको आपके अंदर की ताकत को बढ़ाना. You have to work on your organs. So now let's see how we can come out of our health problems just by breath hold and working on ourselves. So if I have your permission, I would like to share the screen. So do I get your permission? Yes or no? Give me a quick thumbs up. Thank you so much. So Ashtanga Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Now let's move further. Namaskar, I welcome you all to the Ashtanga Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family must be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtanga Chikitsa can also be treated as a preventive so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtanga Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say the structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the various aspects of a human body. Let's come to the fact that who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtanga Chikitsa, freedom from pain and medicine. Swamiji will be talking about the Ashta Sharir or the 8 Sharir or the softwares. Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti Sharir, Vikriti Sharir.
So now let's come to the Prakriti and the Vikriti Sharir. जब हम लोग न्यूरोमस्कुलर हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं, we are mainly concerned with the Prakriti and the Vikriti Sharir, or the natural regenerating factor of the body and the natural degeneration, which is the Vikriti. होता क्या है? When the imbalances occur between the regenerative and the degenerative factors, what surfaces is the pain, stiffness, and inflammation, जो आपको परेशान करता रहता है. तो अब देखते हैं उससे छुटकारा हमें कैसे मिलता है. Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. These are the commonest problems that we see among the participants every week. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or the nerve issue. Ashtang Chikitsa can also heal some of the more chronic problems. For example, muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about how to come out of our current problems. Thank you so much for listening to me patiently. I will now tell you how we are going to proceed in the webinar. After this, you're going to listen to the recorded video of Swami Raj Vibhuji, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद के शरीर के ऊपर काम करके अपने करंट प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो without taking any external interventions like medicines. Then we will be having somebody live who has been a participant of Ashtang Chikitsa. He or she will be sharing their journey of Ashtang Chikitsa. After that, we will be sharing the program details. And last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be coming live to take up all your questions. Of course, the time is going to be limited, so we will be taking up as many questions as possible. So quickly write down all your problems, which is becoming a problem for everyday life. So please, usko likh dale along with your name and number. I myself will be taking up the questions that will be at the fag end of the webinar. Thank you so much. Over to Anilji to share the video. Thank you so much. Namaste. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के
पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, बट दैट इज लोकलाइज प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean?
it cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक example दूं आपको. Let's take an example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया, तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation.
सो हाउ इज योर एनवायरमेंट, नियर बाय एनवायरमेंट? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे। हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया। डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति, अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, एंड देयर इज अ मेथड टू डू इट। इसका एक तरीका है करने का। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, व्हाट डू यू डू? समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मार रहा है, यू फील डैमेज ना, यू थिंक देयर विल बी अ डैमेज। व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? यस और नो? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। व्हाट एवर आई एम सेइंग, यू नो इट ऑलरेडी। तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना। अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे। एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस, you hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको, you hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम। So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप डिजेनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ। यू विल एज, बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली। ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस विकृति? देयर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति। अष्टांग चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति। सो देन नेक्स्ट थिंग, व्हेन देयर इज अ रीजनरेशन, कोई नई चीज पैदा हो रही है, सो इट विल एक्सपैंड, isn't it? वो फैलेगा। एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है, there is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार। सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग, द अदर हैंड रिमेन्स शॉर्ट। एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया। विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना। सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, यू विल गेट नी पेन इन वन लेग। आपके एक पांव में नी पेन होगा। यू विल गेट हिप पेन एट वन साइड ऑफ द हिप if your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem.
न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम, अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन, स्किन ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे। सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है। There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है। नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as caudy. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. Nabhi, caudy, nale. Now if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है। Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा। अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें, just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें। When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath, yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा। You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा। So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं। Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण। चौथे पे आ गए हम, प्रमाण। प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी। इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं। लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है। योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें।
और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी organs है ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. So how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart
towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong. इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम
Marma Ashtanga Chikitsa mein, there is a part in Ashtanga Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata, Pitta, Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body.
He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now, another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है.
So the water around her is Srishti for her. So for human being, the cosmos, ye Brahmand is Srishti. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice, but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें stress होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine.
Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, not never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much, Anil ji, for sharing the video and enlightening our participants as to how to work upon their body. Now I will be inviting somebody live to share his or her journey about Ashtang Chikitsa. So I would like to invite Sangamitra ma'am to please share her journey of Ashtang Chikitsa. Sangamitra ma'am, am I audible? Yeah, you are. Yeah, thank you. Thank you, ma'am, for joining us today evening. So you can share your journey of Ashtang Chikitsa. Yeah, thank you. So my name is Sangamitra Sinha. I live in Delhi and I developed rheumatoid arthritis 13 years back after my daughter was born. And tab se leke, it was like initially it took about 2 years to diagnose what was happening because every joint of my body was like cramped and paining, and there was so much of pain and swelling. I still continued my job, but it was with a lot of difficulty. Then finally it got diagnosed after 2 years. And with allopath medicine, a lot of painkillers and steroids were given, which I did not understand initially. उस टाइम पे उतना इंटरनेट नहीं होता था. 2012 की बात कर रही हूँ. धीरे धीरे समझ में आया इट इज स्टेरॉइड एंड पेन किलर्स एंड methotrexate, things that are also used for cancer treatment, and that actually bothered me. जब मुझे पता चला and धीरे धीरे डॉक्टर ने मुझे कहा, I was doing fine, but doctor said कि every time I used to go, थोड़ा सा medicine increase कर देते थे dosage. And one fine day he told me that now you prepare, next एक साल आपको हम injection देंगे bones में. You prepare yourself mentally and financially because it's going to cost also a certain amount, and mentally आप prepare करो. So that actually मेरा दिमाग बिल्कुल से एकदम switch blow off हो गया कि ये क्या हो रहा है. I was still in my 30s that time. So I thought this is not done. I don't want to go for injections and all, and खराब ही होते जा रहा है. So I said I need to find a solution to this, and I was looking out. Homeopath मैंने शुरू किया. I was doing okay with homeopath, but COVID में मुझे COVID हुआ and joint pains बहुत ज़्यादा aggravate हो गया. Especially knees में जाके concentrate हो गया, and धीरे धीरे मेरे knees ना bend होने लगे. I couldn't stretch my knees, पूरा straight नहीं कर पा रही थी. थोड़ा बेंड होके चलने लगी. पहले एक नी हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरा नी भी होने लगा. होम्योपैथ से पकड़ के रखा था, बट उतना नहीं. देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन, मूवमेंट में दिक्कत हो रही थी. एंड देन आई गॉट कोविड अगेन. लास्ट अक्टूबर आई गॉट कोविड अगेन.
उसके बाद विंटर में वैसे ही मुझे थोड़ा सा स्टिफनेस होता है, ज्यादा दर्द होता है, तो आई थॉट मे बी इट इज द विंटर, मे बी बॉडी ज्यादा वीक हो गया है इसीलिए, तो मेरे नीज और बेंड होने लगे एंड बहुत ज्यादा स्टिफनेस थ्रू आउट विंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल अबाउट मार्च में मेरा नीज इतना बेंड हो गया। जब मैंने डॉक्टर एलोपैथ दिखाया उसके बाद किसी ने बोला तुम एक्सरे करो। I did my X-ray and doctor said there is no other way, total knee replacement. And I not only went to Calcutta doctors, I also went to Delhi doctors, the best of the hospitals, and everyone said ki your only option is knee replacement. I said knee replacement का मैंने जितना सुना है, and I did a lot of research on internet, and मुझे जितना समझ में आया कि 7 to 15 years आपका knees शायद ठीक चलेगा, उसके बाद you don't know. And I am in my 40s. So I thought इसके बाद क्या करूंगी मैं 15 साल बाद, I don't want to go for knee replacement. And I always believed कि हमारा देश में इतना कुछ knowledge है, and I also believe that body अपने आप को heal करता है, just that I don't know how. So I was looking for options, internet पे भी ढूंढ रही थी बहुत कुछ, and ढूंढते ढूंढते I came across this advertisement on Instagram about Ashtang Chikitsa, and I decided to join the webinar, and I had the opportunity to ask question to Swamiji also live, and he said arthritis तो ठीक हो जाएगा, बाकी आपका body भी अगर सब, and I was going through physiotherapy also, and it was a lot of pain. Physiotherapy लेने के लिए भी मेरे में उतना हिम्मत नहीं हो रहा था, like it was so much of pain. So he said कि maybe your body will become a little supple और body allow करेगा, physiotherapy थोड़ा easy हो जाएगा शायद. He did not promise anything, but he said arthritis reversible है. So if you do this for a period of time, it is bound to happen. So I said ठीक है, let me look at this option because I believe हमारे देश में इतना है, एंड स्वामी जी की बात सुन के ना मैं थोड़ा इंटरनेट जाके उनके बारे में और अष्टांग चिकित्सा एंड कुंभक ये सब के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया, एंड मुझे लगा आई कैन प्रॉब्ली गिव माई सेल्फ अ चांस हियर, देखती हूँ. एंड एंड अप्रैल आई ज्वाइन द कोर्स 9 weeks जो आपके पास अभी जो कोर्स आपको बताया गया, आई ज्वाइन दैट. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट होने लगे. And I did not miss any day, like total 9 weeks मेरा हो गया है complete. I'm in the 10th week. Probably 5 दिन भी मैंने miss नहीं किया, वो भी because I was traveling. I was very regular, and कुछ exercises ऐसे हैं with my body condition, बहुत दिक्कत होता है, कुछ मैं कर ही नहीं पाती हूँ, कुछ मैं थोड़ा सा ही कर पाती हूँ, कुछ मैं 50% करती हूँ. तो स्वामी जी सेड कि अगर आपसे कुछ भी हो नहीं पा रहा है, आप लेटे लेटे जितना कर सकते हो उतना ही करो. आई एम एबल टू स्टैंड, बट इनिशियली बिल्कुल बैलेंस नहीं था, अभी काफी बैलेंस आ गया है. नीज में बिल्कुल मैं आई वाज यूजिंग 1 stick टू वॉक, एंड एक टाइम पे ऐसा लगा था अबाउट अ मंथ बैक मुझे लग रहा था 2 stick लगेगा अब मुझे. 1 month डाउन द लाइन टुडे आई डोंट यूज द स्टिक. बारिश में मुझे बहुत दिक्कत होता है, अभी कॉन्स्टेंटली 3 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे, मेरा स्टिफनेस नहीं है. आई हैव सीन एकादशी पूर्णिमा, आज एकादशी है, आई डोंट हैव एनी स्टिफनेस. Miraculously it has worked for me. Yes, I am a long way to go. अभी भी फिजियोथेरेपी चल रहा है, अभी भी मेरा नीज बेंड है, बट बहुत रिलीफ मिला है. पहले लाइक अबाउट 2 months बैक इतना पेन होता था ना, जितना मैं बहुत थक जाती थी, सो पाती थी, रात के 3-4 बजे तक मेरा पेन से नींद खुल जाता था, इतना ज्यादा दर्द होता था दोनों घुटनों में, बोन में बहुत दर्द होता था. धीरे 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 अभी ऑलमोस्ट आई कैन से आई रियली डोंट हैव मच पेन. थोड़ा सा है, चलने में भी थोड़ा सा दिक्कत है. आई एम नॉट 100% ओके, बट आई वुड से अबाउट 60 to 70%. 2 months I've given myself, and I believed, मुझे था कि ये मेरे को ठीक करेगा, मुझे नहीं पता मेरे को इससे ठीक होना है. So that belief was there, and I constantly kept attending all the seminars, and Swami ji जब भी आते थे मेरा कुछ भी question होता था. In fact, I contacted him separately also बीच में कि what do I do, ऐसा बोल रहे डॉक्टर, वैसा बोल रहे हैं. So I have been in contact, and I have believed, and I am today much better. And not only arthritis, in the last 2 months
I've lost weight, I've lost inches. मेरा बॉडी वेट ठीक ही है, बट थोड़ा सा लाइक आई हैव अ डॉटर, आई एम इन माई mid-40s, तो थोड़ा सा टायर्स बन जाते हैं, वो टायर्स मेरे चले गए हैं. आई एम सो हैप्पी. मेरा स्किन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. लाइक वन डे माई फ्रेंड वाज आस्किंग मी, तू कर क्या रही है, तेरा फेस इतना शाइन कर रहा है. सो माई स्किन हैज इम्प्रूव्ड सो मच विद कुंभक. आई हैव सो मच ऑफ एनर्जी नाउ. आई डोंट नीड टू स्लीप मच. मैं 12-1 बजे सोती हूँ, सुबह 6 बजे तक आराम से उठ जाती हूँ, कभी कभी अलार्म के पहले ही उठ जाती हूँ. So I don't need much sleep also, a lot of energy. And the best part is मुझे पूरा पक्का विश्वास है next 6 months भी लगे ना, नहीं शायद 3 months and I'm done. मेरा आर्थराइटिस में इतना बिलीव हो गया है मुझे. So yes, of course body wise वो डिपेंड करता है कि किसका बॉडी में जल्दी काम करता है, किसका बॉडी में कम धीरे धीरे काम करता है, वो सब डिपेंड करता है. But it has worked very well for me and I'm so grateful that I saw this ad one day and I just decided to go with it and just give myself a chance. So I would only say that अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, you can give yourself a chance and let the body heal. Because अभी मैं सिर्फ होम्योपैथ पे हूँ and I'm planning that in the next 1 month probably वो भी मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि होम्योपैथ डॉक्टर ने भी मुझे बोला है आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा. He was the last resort. I thought कि होम्योपैथ डॉक्टर तो नहीं बोलेगा सर्जरी. He said आप दोनों घुटनों पे कर लो. I said भगवान मैं जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए. So I'm really happy and this is like जो भी मैं बोल रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. So if you get something from here, I think you can take it forward and you can give yourself a chance. So thank you Avisha and thank you to Swamiji. I'm so blessed to find his उनका वो मिला मुझे. Thank you. Thank you so much, Sanghamitra ma'am, to know about your journey. And I think the participants have also heard you and your story and how you've started healing. And the most important thing is the happiness quotient. So I would now like to invite Duru Bharwani ma'am to please share her journey of Ashtang Chikitsa. Ma'am, I put you on spotlight so you can start. Ma'am, can you please unmute yourself? Ma'am, you're not unmuted. You'll have to, yes. Okay. Can You're you hear me unmuted now. Yes, Yeah. ma'am. Actually, as she said, arthritis, I have osteoarthritis from the age of 45. And I cannot sit on the floor, and doctor had declared like you have to do knee replacement only in future. But my family doctor, since they don't misguide being a family doctor, he said, do it after 60 because the machine lasts only for 10 years. A replacement. So I thought the other alternate way I have to manage. Now I was doing Ramdev's full breathing exercise daily on chair. So I won't say it didn't help me, but I was under the impression that these exercises I have to do to maintain myself so that I grow old gracefully and don't get bedridden in the last. And actually, in the Corona period, I got cancer because of my breathing exercise and yoga. It was not visible outside so soon. My doctor said it's like because of your yoga, the disease has not come out fully and make you aware that you have some problem. So I never got even fever. So my cancer stage was almost 4th border. And immediately, by God's grace, I got into the right doctor during Corona. My surgery was done, and then doctor put me on letrozole tablet for 10 years, and then along with that, calcium tablet. Because I said doctor itself said letrozole will give you body pain, and slowly your body will get used to it. And in between, I already have osteoarthritis, I have spondylitis, I have this problem. Then major, I had gone through total alopecia, like autoimmune disease. It's not one problem I had, then itching, skin problem. So somehow I was managing through yoga. But I was under the impression that you have to maintain for growing
old gracefully. My mom had done knee replacement and I knew for emergency also she cannot sit down. So I thought, no, for me, I am not going to opt for replacement. And I was just moving. But when I came with this Ashtang Chikitsa in Facebook and then Swamiji's webinar, that regeneration can be done. I was so thrilled to follow this. And sincerely, like I still do my exercise on chair. And as they said, everybody's body is different. My lower body is little heavy. I have more problem in my right knee. But after doing this kapha, kapha marma vinyasa, I'm feeling quite light. Actually, I told Geeta ma'am, Meera ma'am, that ma'am, I won't be able to do cat pose, dog pose because I have done the surgery. My arms are weak. But I thought, let me try. And I'm trying. I get pain in my arm, shoulder little bit, but then I keep ice pack and all that. I'm able to manage without tablets. And secondly, my Ayurvedic doctor had told stop calcium tablets, which allopathy doctor is suggesting for letrozole. You can take alternate source of calcium like ragi, other sources. I tried, but I used to get pain in my joints. Fingers like now and then I'll be, what to say, folding, opening my fingers because it will be painful. Now, after this doing Kumbhak therapy, I've stopped my calcium tablets without consulting my doctor, but I'm taking sesame seeds, then ghee, then milk, all that for calcium. And by God's grace, I have not got pain in my joints since now it's going to be more than 1 month, I think, since I have stopped. But I am not trying to avoid my exercises because after cancer, I have chemo feet. They say chemo that nerves in the feet become totally cells burn in chemotherapy. So my feet is actually chemo feet. Still, I feel a swelling. I feel the burning in my feet. But after doing this little bit, that kapha marma vinyasa, lifting legs up, I feel little bit, I can feel it's improved. Secondly, after my cancer, I couldn't talk. If I talk to two persons on phone, on friends, then third person, I'll be just feeling my energy is low. I have to just speak, take out energy from my heart to talk. So I used to frankly tell them I'm feeling weak, I cannot talk. Secondly, I used to sleep from 3 to 6 as a must because I was that weak. I didn't have stamina. I cannot carry weight. But all over my energy, my spondylitis is gone. My right knee is now little flexible. I can say my improvement in knee has come after that kapha marma vinyasa more. Maybe otherwise, like I am on the chair and I didn't try also, but this has definitely helped me in my folding. I feel my legs are light now. And joints pain has, finger joint pain is not there. Calcium tablets have stopped. I don't sleep, even though I habitual sleep because I have nobody at home, so I feel bored and I'll automatically afternoon I go to bed. But still, I don't get that sound sleep which I used to sleep from 3 to 6, like and I'm feeling very energetic. I'm really thankful. Actually, I was under the impression once the body degenerates with age, it cannot regenerate. That was the strong impression, as everybody says, you are growing old. All old age diseases, whenever you go to allopathic doctors, give any complaints. Even my mother used to give complaints. This is a old age problems. You cannot do anything. You get cramps, you cannot do anything. So I was also under the impression old age should be maintained with exercise. But now I'm so confident with Swamiji's webinars and practicing this course that I will regenerate my body again into a normal body. Of course, I cannot stop my cancer tablet, but still calcium tablets, other tablets I'm not taking. I'm very happy that I'm tablet free. Only one tablet I am taking, which is a must for me, Restall. I'm not taking, I don't have BP, I don't have sugar. Only
cancer, which is like I've survived well because of the Ramdev's breathing exercise. I won't blame that didn't help. I survived well through cancer because of those exercises. But this is a miracle. I can definitely say Swamiji's these Kumbhak exercises course fully is a miracle. And I really feel like once my body completely regenerates, I would like to give another talk on that after getting healed completely. Maybe after 1 year, maybe after 2 years, maybe after 3 years. Thank you, Avisha and Swamiji. Thank you so much, Duru Bharwani ma'am, for sharing your journey of Ashtang Chikitsa. Now, I would like to request Anil ji to please share the course details with the participants. Over to Anil ji. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds and I'll share my screen. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay, great. Namaskar, everyone. So let's get to know the details of the program, which a lot of you may be waiting for. What are the classes, or the timing, the date, and everything. We'll go through this very fast, and we'll stop at some places where some explanation is required. हम इसको जल्दी से कवर करेंगे ताकि इसके बाद स्वामी जी हमारे साथ लाइव आ सकें आपके सवालों के जवाब देने के लिए. ठीक है? First of all, this is a guided program conducted by trained कुंभक मेंटर्स. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन कराया जाता है ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के ऊपर. जो आप अभी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो जूम के ऊपर अटेंड कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आप क्लासेस अटेंड करेंगे अष्टांग चिकित्सा के. और ये कुंभक मेंटर्स होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं. राइट. नेक्स्ट, program module. जैसा कि स्वामी जी ने बताया है वीडियो के अंदर, like स्वामी जी has told in the video also, there are 3 modules in the program: Vat, Pitta and Kapha, or module 1, 2 and 3. Duration of each module is 21 days. Many participants ask us that which module to choose. You don't have to choose any module, you have to do all 3. सभी तीनों मॉड्यूल को करने से ही पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है. ये अलग अलग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अलग अलग जो वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए है. तो इस तरीके से आप समझिए इसको. तो 21 दिन का हर एक मॉड्यूल है. सो टोटल ड्यूरेशन जो बनेगा प्रोग्राम का 63 डेज का होगा, जो कि 9 हफ्ते का समय होता है. प्रोग्राम ओवरव्यू. इफ यू सी हियर आई हैव रिटन 9+1. व्हाई 1 week extra? We'll get to understand in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring or the practice class. What are the next steps? आगे आपने क्या करना है? You pay the program fee and there's a special webinar pricing for people who have stayed back. After that, you fill the participant onboarding form and then you start your classes, starting with module 1 or the Vat. Total classes, again, module 1 has 6 classes. Same module 2 has also 6 classes. Module 3 also has 6 classes. So total 18 classes. But if you see in the white color, it's written total classes as 18 learning class plus 1 customization class. What is this customization? That also you will understand very soon. So total engagement with all of you who will be enrolling in the program will be 10 weeks, right? Batch 137 is starting on 3rd July, which is a Monday at 6 p.m. हमारा जो 137वां बैच शुरू हो रहा है वो 3 जुलाई से हो रहा है, सोमवार के दिन शाम 6 बजे. मॉड्यूल 1 के लिए जो मेंटर क्लासेस होंगी या प्रैक्टिस क्लासेस होंगी वो थर्सडेज को होती है. ये सभी डिटेल्स हम शेयर करेंगे अभी जूम चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी. व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका क्लासेस में? As you must have understood by now, these are live sessions which are conducted by our trained Kumbhak mentors.
mentors watch all the participants, so this is the reason you have to keep your cameras on. क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आपको अपना कैमरा ऑन रखना होता है क्लास के अंदर, ताकि मेंटर्स सभी पार्टिसिपेंट्स को देख पाए और अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो बता पाए, राइट? क्योंकि ये ऑनलाइन है तो चीजें थोड़ी अलग तरीके से की जाती हैं, बट ये डेफिनेटली आपको फायदा देती है, जैसे बहुत सारे और पार्टिसिपेंट्स को दे रही है। Then you get written instructions in English and Hindi. Hindi English दोनों में लिखित निर्देश भी मिलते हैं. Session recording और the class recordings are also there. सभी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को अवेलेबल की जाती है. सो अगर आपने कोई क्लास मिस भी कर दी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. Extras, lot of extra things will be shared during the course of your program. जो पूरा प्रोग्राम आपका चलेगा 9 हफ्ते का, उसके अंदर काफी एक्स्ट्रा चीजें शेयर की जाएंगी, जैसे कि मेंटल प्रैक्टिसेस, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव. माइंड यू, दिस इज नॉट अ डाइट प्लान. There is no diet plan given in this. Many people ask us if there are any dietary restrictions. There are no dietary restrictions, but you'll get a video from Swamiji in which he explains how to use food so that it supports your body and not harm it. खाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से पकाना है ताकि वो नुकसान ना करे, ये आपको एक वीडियो मिलता है. तो वो डाइट पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर. देन सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस मिलते हैं, नॉलेज काफी शेयर की जाती है सभी के साथ. आई हैव रिटन ईयरली एक्सपेंसेस हियर, एंड दीज आर एक्सपेंसेस दैट सम ऑफ यू और लॉट ऑफ यू मे बी ऑलरेडी डूइंग जस्ट टू मैनेज द प्रॉब्लम दैट यू आर इनटू. जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, उस पर शायद इतना खर्चा हो रहा होगा, और ये मैं क्यों आपको आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो आप जल्दी ही समझ जाएंगे. If you talk about doctors, these are yearly figures, right? So you may be paying 6,000 to 12,000 yearly to the doctor in the form of his consultancy fee. If you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 would be going towards that. And medicines may be costing you another 15,000 to 30,000 every year. So total 33,000 to 72,000 per year is going in just managing your problem, not solve it, just to manage it. If you are into allopathy, we know the side effects of allopathy, so we will not talk about that so much here. तो ये मैंने इसलिए शेयर किया, this I've shared because so that you understand when I announce the fee and the special webinar pricing, it will be so economical, so affordable that you won't believe. It's made affordable because it's something new to the world. Although it's been a part of our culture, it's been a part of Ayurveda, but lost and forgotten. But now Swamiji is reviving it. So the pricing has been such so that most of the people can afford it. आगे रख सकते हैं. And it's also important to know who this program is not for. ये भी जानना जरूरी है कि किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, so that it becomes clear who this program is for, ताकि ये क्लियर हो सके किन लोगों के लिए ये एक्चुअल प्रोग्राम है. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. ये इसलिए बोलते हैं, स्वामी जी भी इसकी काफी बात करते हैं. हमेशा आप हर एक वीडियो में दिखेंगे कि हम मैजिक पिल ढूंढ रहे होते हैं, कोई जादू की एक दवाई मिल जाए, एक गोली मिल जाए जिसको हम खाएं और ठीक हो जाए. ऐसा नहीं होने वाला है. अभी तक तो हुआ नहीं है तो आगे भी ऐसे कोई उसमें कोई स्कोप नहीं है ऐसा कुछ हो जाए. और ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज बचपन से हमें आदत बन चुकी होती है एक कोई भी दवाई लेने की, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है एलोपैथिक मेडिसिन. आप भी अपने फैमिली में देखिए, छोटे बच्चों को खांसी जुकाम थोड़ी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत या तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कुछ सिरप कोई उनको पिला देते हैं. बॉडी को चांस देते ही नहीं है हील करने के लिए, राइट? तो ये एक आदत बन चुकी होती है. तो अगर ऐसा कुछ आप दवाई के लिए आए हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, और आप एकदम से रिजल्ट चाहते हैं तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है. बिकॉज जो ये प्रॉब्लम है, द हेल्थ इश्यूज दैट यू आर इनटू did not come overnight, so it will not go overnight also. That has to be understood very clearly. आगे बढ़ते हैं. This is not for those who are not ready to work on their body. Why? Because every day you will be required to invest 80 to 90 minutes to do your daily kriyas. I talk to a lot of people and many of them say that we don't have this much of time. Give us something which can give us fast results. So if you want very fast results, this is not for you. And if you can't invest 80 to 90 minutes on your body,
this is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when you're into pain, when you're into a chronic ailment, patience goes down, but still from our side, we have to say it that please be patient. And this is very important. The last point, it's very important. This is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to stop here and just talk about it a slight detail, because when we advertise on Facebook, we say that a free introductory webinar. Many people misunderstand it as saying that the therapy is free. The webinar that you are attending, it is free because it's an introduction to Ashtanga Chikitsa. It's an introduction to Kumbhak therapy. But the 9 weeks program that is conducted under supervision of expert mentors, that is not free. That is a paid program. And the other thing is that a lot of people attend webinars. They attend a lot of webinars just to pick up some tips. See, अगर टिप्स से प्रॉब्लम ठीक होना होता तो हजारों वीडियो हैं यूट्यूब में. आप वीडियो अपलोड करके कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है आज की डेट में. एंड देन बट उससे काम नहीं होता है ना. टिप्स से कोई भी थेरेपी है उसको समझना जरूरी है, प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसकी गहराई तक जाना जरूरी है. और इसमें अभी हम बात करेंगे डायग्नोसिस, जो कहीं नहीं करते हैं. डायग्नोसिस के नाम पर कुछ और ही होता है, उसकी भाई हम बात करेंगे. तो ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं होगा. दिस इज नॉट अ फ्री प्रोग्राम. द वेबिनार दैट यू आर अटेंडिंग राइट नाउ इज फ्री, but the treatment of 9 weeks, the therapy, the program of 9 weeks, that is a chargeable. Okay. So just wanted to clear so that you don't fight with me after the webinar, right? आगे बढ़ते हैं. What you get in the program, let's talk about this. Now, this will be something which you may not have heard before. हम बात करते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस की रूट कॉज डिटर्मिनेशन. जड़ पता करने के लिए, बीमारी की जड़ क्या है उसके लिए एक डायग्नोसिस करते हैं स्वामी जी, जिसको प्राण शक्ति डायग्नोसिस कहा जाता है. थोड़ी इसकी बात करते हैं तो कि जानना जरूरी है किस तरीके से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन ऑनलाइन डायग्नोसिस. सेकेंडली, दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस. नाउ बोथ द थिंग्स मे साउंड स्ट्रेंज टू यू. दोनों ही चीजें आपको विचित्र सी लगेंगी कि ये एक तो ऑनलाइन है और नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है. ये होता कैसे है? Let me explain. You'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. And you have to note those down. Rachna, somebody is unmuted. Can you mute the person? प्राण शक्ति डायग्नोसिस में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलता है और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाएगा अपनी ब्रेथ और इमोशंस के ऊपर, और वो नोट डाउन करना होगा उस फॉर्म के अंदर. Second thing that you'll be doing is you'll be writing about your health issues in detail. दूसरी जो चीज आप करेंगे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसके डिटेल में लिख रहे होंगे आप. The last thing that you'll be doing is you'll be uploading a selfie photograph. Neha, can you unmute the person who is unmuted? The third thing that you'll be doing is you'll be uploading a selfie photograph, shoulder and above, in which the face should be clearly visible, but without any specs, and in case of ladies, without any makeup also. तीसरी जो चीज करेंगे आप इस प्राण शक्ति फॉर्म के अंदर, अपनी एक सेल्फी फोटो अपलोड करेंगे, शोल्डर एंड अबव. इसमें आपका चेहरा क्लियरली दिखता हो, आंखों पर चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में मेकअप ना हो. जब ये तीन चीजें स्वामी जी के पास जाती हैं, स्वामी जी पता कर पाते हैं कि जो 84 फोर्सेज हैं. अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है स्वामी जी का, स्वामी जी 84 फोर्सेस की बात करते हैं कि 84 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स वीक है, एक या एक से ज्यादा कौन सी फोर्सेस वीक है, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ इश्यूज, जो अपनी करंट इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें आ चुके हैं. बेस्ड ऑन दिस he finds out the weak forces, and this is what is called diagnosis, the root cause, the reason behind it. But what we understand by diagnosis is when you go to a diagnostic center, you give a sample of your urine or blood, or they scan your body, but they're just showing, let's say they do an MRI, they do an X-ray, they do whatever. And they say that we see this, we see a gap between the disc, between a disc in the spine.
लेकिन वो ऑब्जर्वेशन है, वो डायग्नोसिस वो क्यों हुआ वो तो नहीं बता पाते हैं. Diagnosis is not that, this just an observation. So please understand what's a diagnosis and what's just an observation. आप किसी की फोटो खींच के कहेंगे कि ये लाल कलर है, पीला है, ये तो बच्चा भी बता सकता है. बट वो हरा रंग क्यों है, वैसा लाल रंग क्यों है उसमें, that is diagnosis. So that has to be understood. So Pran Shakti diagnosis is in itself the worth, the whole cost of this program only. सिर्फ डायग्नोसिस की भी हम बात कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम के कॉस्ट में डायग्नोसिस, बिकॉज नॉट मेनी थेरेपीज आर देयर व्हिच नो हाउ टू फाइंड द रूट कॉज. तो इसलिए ये जानना जरूरी था कि ये होता क्या है. नेक्स्ट, ये कुंजी है. दिस इज द मैजिक टू कुंभक थेरेपी, टू दिस थेरेपी. एक बार आप जड़ पता कर पाएंगे तभी तो सोल्यूशन कुछ कर सकते हैं ना, अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे. डॉक्टर्स आपके बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, वो करते आए हैं. योर बॉडी इज नॉट अ लैब जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाए, राइट. सो इसलिए जानना जरूरी है कि जड़ क्या है प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. वीकली 1 मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स विल बी देयर. ये मेन क्लास होगी. इंस्ट्रक्टर्स आपको क्रियाओं को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद आपने साथ में करना. 60 to 90 मिनट्स क्यों लिखते हैं? 60 is the actual duration of the class. Then the questions, the doubts of the participants are taken. So it may take another 20 to 30 minutes. That's why we write 60 to 90 minutes. In the practice class, same 60 to 90 minutes. You'll have to keep your cameras on so that the mentors can watch you and correct you there. Cameras आपको कंपल्सरी ऑन रखना होता है. अभी तो आपने ऑन नहीं रखा होगा काफी लोगों ने, बट क्लास में आपको कंपल्सरी ऑन रखना होगा. Online course access for 6 months. What is this online course access? Like I told you that the classes are recorded. The classes are recorded and uploaded to your course dashboard. And these recordings, this access to these recordings will remain with you for 6 months after your program is over, which is enough time to learn all the kriyas by heart. ये काफी समय, 6 महीने काफी समय होता है आपको कोई भी क्रिया को कंठस्थ करने. Next, 5th point, videos of all kriyas done in the class. How this is different from the last point of the class. The class recording is of the whole duration, 60 to 90 minutes. Videos of all kriyas is, these will be the videos of separate kriyas. Some kriya may take 2 minutes to watch the video of that kriya. Some video of particular kriya may take 10 minutes, 15 minutes. So you don't have to watch the whole duration of 90 minutes to just have a look at how a kriya is done. Separate videos will be there. Written instruction in English and Hindi, which can be downloaded, and you can even take a printout also to do and follow and refer to and do your daily kriyas. Private WhatsApp group to ask doubts and questions. This is very, very important because most of the time you'll be spending here. Like I told you, as soon as you enroll, you'll be added to this class WhatsApp group. 2 days of the week, you'll have your live classes. The remaining 5 days, you have to practice on your own. And if you have any doubt that time, so this group, private WhatsApp group, is the place where you'll be asking your doubts and questions. Our mentors are there in the group, so they'll be answering all your questions. They'll be solving your doubts and guiding you step by step. Then point 8, individual participant progress tracking and feedback. We collect participants' feedback on a weekly basis and we track their progress. And if somebody is not making any progress, we try to find out the reason why. And then we help them accordingly. So this is point number 8. And 9th point is therapy customization for each participant in the 10th week. This is very, very important. And this is connected to the first point I talked about, the Pran Shakti diagnosis. The question comes in the mind of people that there'll be a lot of people with different ailments. So how come the classes are the same for everyone, right? Let me just try to explain why the 9 weeks are common and why the customization is done in the 10th week. First of all, the body needs to be prepared to receive this customization. I'll talk about what customization is. What happens in these 9 weeks? A question aata hai na dimag mein ki ye 9 hafte mein kya hota hai? There are primarily there are 3 important things that happen in these 9 weeks. First, the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. Secondly, the structural alignments, like Swamiji talked in the video also,
there are three basic alignments of the body: thighs, navel, and the chest. So this structural alignment is done. And then the third thing that is done is you will be taught controlled exhalation. The Kumbhak therapy is based on controlled exhalation. And this is the reason, if you are doing Kapalbhati on a daily basis, you are told not to do Kapalbhati because it involves forced exhalation. Any Kriya that you may be doing, which involves forced exhalation, जिसमें जोर से सांस आप बाहर निकालते हैं, अगर कोई भी ऐसी क्रिया है, आपको मना किया जाता है 5-6 महीने के लिए, क्योंकि कुंभक जो है वो कंट्रोल्ड एक्सेलेशन पर ही आधारित है, राइट? सो जब ये तीन चीजें हो जाती हैं तो आपकी थेरेपी को, आपकी बॉडी तैयार है, ये कस्टमाइजेशन, ये फाइन ट्यूनिंग होती है इन द 10th वीक बेस्ड ऑन एवरीवन्स प्राण शक्ति डायग्नोसिस. Their kriyas will be fine tuned and customized as per the diagnosis, which will be different for all the people, right? So that's why it's done in the 10th week, not in the first week, because body will not handle this customization if it's done in the first week, because the body is not ready. Now, the 10th and the last point is extended support for 30 days after the program is over. This is the only program which offers an extra 30 days of support after the program is over. Why we do this? Because many people who are not in good physical or health condition, they fall sick and they lose out on a lot of live classes. So to cover that up, we have extended this support, and there are other reasons also. There's some family function or something like that. So you have enough 30 days after the program, after the 10 weeks are over, to get all the support, get your question answered. Even after those 30 days, we keep all the participants with us, because from the class group, we shift them to the Telegram group. Just like you have WhatsApp app on your phone, there's a Telegram app, which can have, I think, 1 lakh members. So we add them to that. So you'll be connected with us throughout your life until you want to stay with us or not, right? This was the 10th point. And let me announce the fee, which a lot of you may be waiting for. So the normal fee is 14,500. But like I promised you, that there's a special pricing for people who are just here. Let's understand. Let's see what that pricing is. Just 6,500 for the complete 10 points I talked about. This includes the Pran Shakti diagnosis, the 18 classes, 1 extra customization class, support, daily support in the WhatsApp group, and then customization I talked about, the recorded classes for 6 months, all inclusive. This has been made so affordable that most of the people can take advantage of it and get good results in their health condition. How to enroll? The first step is to pay the program fee. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Step 3 is to fill the participant onboarding form that Neha from team will be sending to you on your personal chat. And then step 4 is to join the class WhatsApp group, which I talked about, where you will get daily support. Step 5 is to start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa, simple 5-step process. Payment methods we'll share in the WhatsApp group and in the Zoom chat just now. I'd like to, this is the last slide that we have on the screen, because right after this, Swamiji will be live with us. I'd like to talk about a super team which will be at your service. And this super team is, this title has been given to us by our participants. We haven't given it to ourselves, okay? Because the kind of support that you'll be getting, you may also start calling us a super team. We have Rachna Shrimal Bothra. She is the host of the program of this webinar, and she is the program director also. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of the batches, the assignment of mentors and everything. Ashwini Kumar, he is the manager of IT. Enrollment Inja, she is Neha Upadhyay. She is the person you will be talking to and interacting to the most before you start your classes. Mentors, we have Ranjana Swain, R.D. Gupta ji, Soni Chhabria, Aruna, Nina, Meera, Sushma, Manvi Shroff. We have a lot of mentors, because we understand this is an online program. So we need to pay attention to each and every participant. Although the classes are conducted on a group, but individual attention is given. Many people have this question, whether we'll be able to handle it or not. You do not have to worry, because this is the 137th batch that will be starting on Monday, which means we passed out
We've done this 136 times in the last 22 months. So just be assured, we are experts at providing online therapy, and it's our responsibility to make you do the Kriyas online only. And you can stay at your home in the comfort of your home and do the Kriyas and do the whole program. WhatsApp admin, I'm Anil Chauhan, and I'll be answering your questions if not taken up here, because due to shortage of time, Swamiji may not be able to answer all your questions, but do not worry at all. If your question is not answered or taken here, you please post your question in the WhatsApp group, and I'll make sure to answer all your questions. Please don't be angry. Don't leave the group. Many people, when a question is not answered, they just leave the group. But please don't go away, because this is something that you may miss out on. This is a unique therapy and it's miraculous, as many of our participants have already told you. Then technical person, we have Ivanshu Reddy. He takes care of all the uploads, the video upload, the written instructions. If your app is not working where you will be able to watch your videos, he's the person who will be helping you. Then we have personal support team, separate personal support team. We have Anita ji, Ankana ji, and Kavita ji. They talk to all the participants from time to time to make sure that the program is being done properly, that the participants are understanding all the Kriyas, and if there's not, then we make sure to provide them personal support separately also. Okay, so this is the end of my slide, and I'll just stop my screen sharing here, and I think Swamiji has also joined. With this, I take your permission. Thank you. Okay. Swamiji, I'm putting you on spotlight. Namaskar, Swami. Yes, I will be just taking up the questions one by one. Manisha ma'am talks about fear and anxiety and acidity. Okay, fear, anxiety, and acidity. Now, can we relate all these things? क्या इनको जोड़ा जा सकता है? क्या इनका relationship देखा जा सकता है? Acidity, fear, and anxiety. So I'll tell you the connecting factor. ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? How these things are connected? इसको थोड़ा समझते हैं. Now, fear and anxiety happens because there is something called as adrenal gland. There are adrenal gland above your kidney. Kidney के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, थैलियां होती हैं, और वो काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो कि बेसिकली आपके किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. तो whenever body is in some kind of risk, जब आपका शरीर किसी तरीके के रिस्क में आ जाता है, तब एड्रिनल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है. और कम क्या हो जाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाता है. व्हाट इंक्रीजेस एड्रिनल एक्टिविटी? दैट मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स आपके शरीर का बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम आ जाता है. घर में खतरा है तो किचन बंद होता है ना पहले, ऐसा ही आपके बॉडी में भी होता है. Now, because of the adrenal activity, a person gets into this anxiety. Anxiety indication है there is some kind of a stress within the body, risk within the body. Anxiety एक आपको क्या बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया. अच्छा, अब देखते हैं when does your body do metabolic response? metabolic response कब देता है आपका शरीर? जब आप भोजन खाते हैं ना, तो वो उसको पचाने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एसिमुलेट करने का काम करता है, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. लेकिन अगर आप दवाई खाएंगे तो आपका बॉडी क्या कहेगा? योर बॉडी रिकग्नाइजेस योर मेडिसिन एज नॉट फूड. आपका शरीर समझता है कि ये आपका भोजन नहीं है, तो भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा. तो कौन सा रिस्पॉन्स करेगा? वो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएगा.
इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने का तरीका क्या है? एड्रिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अगर आप आज के टाइम पे देखें, लोगों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी ऑलमोस्ट, एक सर्वे कहता है मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यानी 10 में से 8 लोग। नाउ ये कब हो रहा है? जब मेटाबॉलिक रिस्पांस आपके बॉडी का कम हो रहा है, इम्यून रिस्पांस बढ़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस शरीर में कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो इसका भोजन नहीं है, विच इज नॉट इट्स फूड। जब एक बच्चा पैदा होता है, कितना वेट होता है उसका? 2 किलो का ना, 2 किलो के आसपास, नियर बाय 2 kg। और उसको कितने सारे इम्यूनाइजेशन के टीके लगते हैं? एंड हाउ मेनी मेडिसिन यू वुड हैव टेकन इन योर लाइफ? आपने कितने दवाइयां खाई होंगी, दर्द की दवाई और पता नहीं कौन कौन सी दवाई। क्योंकि अभी तक एक भी इंसान तो ठीक नहीं हुआ ना, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटो इम्यून कंडीशन, न्यूरोपैथी, एक भी इंसान तो ठीक नहीं हुआ दवाई खा के, मगर फिर भी आप दवाई खाना चाहते हैं। एक और जरा डेटा देखते हैं। अच्छा, कितने डायबिटिक ठीक हो गए दवाई खा के? इज डायबिटीज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, isn't it? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। भाई एक भी इंसान तो ठीक नहीं हुआ अभी तक। थायराइड, इफ यू रिमेंबर योर ग्रैंडमदर, दादी नानी ऐसी याद है? उनको थायराइड था क्या? अभी एपिडेमिक बन गया। जॉइंट इश्यूज तो आज आप इतना देख रहे हैं, बच्चों में हो रहा है जॉइंट इश्यूज। इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी तो इंक्रीज हो रहा है। So why it is happening? One of the reason is we are putting something which is not your food. आपका भोजन नहीं है वो। और जो भोजन खा रहे हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक। What food you are also putting in your body, body doesn't treat it like your food. वो इसको recognize करता है कि ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, क्योंकि आपने उसका जेनेटिक्स बदल दिया ना। हाइब्रिड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इनऑर्गेनिक है, केमिकल्स डाले हुए हैं उसके अंदर, प्रोसेस किया हुआ है, तो बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज इट। तो जो भोजन आप करते हैं वो भी बॉडी उसमें आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स नहीं रहा। सो ऑल दीज इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब जो भी आप डाल रहे हैं शरीर के अंदर, शरीर को उसको यूज तो इतना नहीं कर रहा, मगर खतरा बढ़ता है ना। एनवायरमेंट हैज बिकम रिस्क, इजंट इट? वी हैव चेंज द एनवायरमेंट। एक हेल्दी जीव को पैदा होने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वो तो हम बदल चुके हैं। तो आप कितना रिस्क दे रहे हो बॉडी पे? बॉडी पे जब भी रिस्क आएगा तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम आएगा, यानी आपका शरीर पचाएगा कम, इस्तेमाल कम करेगा फूड को, उसको बाहर निकालने का ज्यादा सोचेगा, तो टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे आपके बॉडी में। यूरिक एसिड बढ़ रहा है लोगों का, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, स्प्लीनोमेगाली बहुत ज्यादा, स्प्लीन बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता, हेवीनेस फील होता है बॉडी के अंदर, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आपके शरीर का ठीक नहीं है और इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। जब भी बॉडी खतरे में आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो एंजाइटी बढ़ेगी। वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है बॉडी जिससे कि वो जिंदा रह सके, जिसके कारण कि ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में थोड़ा बढ़ेगा, ब्लड शुगर आपके बॉडी में थोड़ा बढ़ेगा, तभी तो आपका शरीर जिंदा रहेगा। तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे बॉडी के अंदर किसी तरीके से कोई मटेरियल जाए, फ्लो हो। और उसके कारण होता क्या है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन स्ट्रेंथ नहीं है, तो फ्लो जब हो रहा होता है उसको झेल नहीं पाता आपका शरीर, घबरा जाता है। जो घबराहट होती है तो हार्ट फ्लटर करने लग जाता है, ब्लड का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल जैसे ही बढ़ेगा, तो एंजाइटी जैसे ही बढ़ेगी तो घबराहट होगी, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, क्योंकि एंजाइटी रिस्पॉन्स और आपका नर्वस सिस्टम ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपके बॉडी में कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स देने के लिए नर्वस सिस्टम का पूरा जाल बिछा हुआ है। अगर उसको ट्रिगर किया जाए तो उसके अंदर कंपन आएगी जो आप झेल नहीं पाएंगे
और उसको एंजाइटी की तरह फील करना है। मेटाबॉलिक रिस्पांस कम हो जाने के कारण एंजाइटी बढ़ रही है। इलाज क्या है? इलाज क्या है? आप अपने मेटाबॉलिक रिस्पांस को बढ़ाएं, इम्यून रिस्पांस को बैलेंस आउट कर। कोई दवाई कर सकती है ऐसा? कोई दवाई आज तक नहीं बनी जो कि आपके मेटाबॉलिक रिस्पांस को ठीक कर सके। आज तक नहीं बनी, आगे चल के भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपके बॉडी का स्ट्रेंथ है। दोबारा से देखिए, रिकवर आपका शरीर जैसे करती है उसे रिकवरी स्ट्रेंथ कहते हैं। वो रिकवरी कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती। दवाइयां सपोर्ट कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, मगर रिकवर आपका शरीर ही करेगा। लाखों सालों से शरीर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बहुत कम प्रॉब्लम हुई, मगर पिछले 100 साल के अंदर इतना प्रॉब्लम बढ़ गया, क्योंकि आपके फोर्सेस शरीर में 84 फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, वो कम हो गए, वो वीक हो गए, इम्बैलेंस में आ गए। भोजन करके, अच्छा भोजन करके, दवाई खा के आप वो बल, अपने शरीर के बल को, रिकवरी स्ट्रेंथ को, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते। आपका भोजन पचाने के लिए भी शरीर बहुत खर्चा करता है अपनी एनर्जी। भोजन खा के, आप फूड खा के मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते, ठीक है ना? तो unless and until you increase the strength factors of this body, 6 बल हैं: देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, और 7 टिश्यूज फॉर्म होते हैं आपके बॉडी में: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। उसको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आप देखेंगे रिकवरी का स्ट्रेंथ आपके बॉडी का बढ़ जाएगा, इम्यून रिस्पांस आपके बॉडी का बैलेंस आउट हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। एंजाइटी, आप 6 महीना कुंभक कर लो, एंजाइटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं। ये बहुत सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, और ये हमारे क्लासेस में हम बहुत सारे कोर्सेस कंडक्ट करते हैं, उन सब में ये बहुत कॉमन चीज है। लोग कहते हैं मेरा एंजाइटी जो काफी सालों से था वो ठीक हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे भूख अच्छी लगती है, मेरा डाइजेशन ठीक हो गया। जब भी आपका एसिड रिफ्लक्स होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आपका शरीर उस एसिड को मेटाबॉलिज्म करने के लिए। तो एसिड रिफ्लक्स, एक तरफ फ्लो नहीं होगा ना तो उल्टा आएगा, तो वही एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। जो फ्लो को आप बढ़ा देंगे अंदरूनी, एसिड रिफ्लक्स बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगा। बहुत आराम से ठीक होने वाली चीजें हैं, मगर इसके इर्द गिर्द जो शब्द जाल हमने बुन दिया ना, उसे समझ ही नहीं पाते। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, इनको समझिए, और कहां पे आपको इलाज करना वो भी समझिए। कुंभक अंदरूनी प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट को और बॉडी के अंदर मटेरियल फ्लो को कंट्रोल करने का तरीका है। बाहर आप एक्सरसाइज करके बाहर की चीजों को, है ना, कहते हैं एक्सटर्नल फैट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल विसरल ऑर्गन और फैट और कंपोनेंट को अगर आपको सही करना है तो आपको कुंभक के अलावा कुछ है नहीं। एनीवे आप कर ही रहे हैं कुंभक दिन रात, है ना, मगर वो फैक्टर्स कुछ वीक हो गए, उसको बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। The next question is from Sarala Ram Pochiraju, ma'am. I am suffering from knee pain. Okay, knee pain I can explain you in so many different ways. बहुत तरीके से मैं नी पेन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। आउट ऑफ ऑल दोस आई विल एक्सप्लोर फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें आपको बताता हूं। आई कैन एक्सप्लोर नी पेन इन हंड्रेड्स ऑफ वेज। अच्छा, पहली चीज है, सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हम देखते हैं। बाहर से अगर हम देखें तो अगर आपके घुटने, इफ यू कंपेयर इट जस्ट लुकिंग एट इट, अगर आप केवल देखेंगे, अगर आपके घुटने ब्लैकिश दिखाई दे रहे हैं, 3 कलर चेंज करता है आपका स्किन। थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएगा, थोड़ा रेडिश हो जाएगा और थोड़ा व्हाइटिश हो जाएगा।
ये 3 कलर अगर आप ऑब्जर्व कर सके अपने घुटने में, इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ। हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इट इज ब्लैकिश, थोड़ा ब्लैकिश है ना, तो वहां पे क्या हुआ, गैप हो गया, वहां पे गैप हो गया। थोड़ा व्हाइटिश है ना, तो वहां पे जमावट होगी, कोई चीज जाम हो गई, स्टिफनेस होगा। अगर रेडिश है ना, तो इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन आ गया। ठीक है, 3 तरीके से बताएं। इफ यू ऑब्जर्व योर नीज, अगर ये 3 चीज में कोई एक चीज ऑब्जर्व कर सके हैं, व्हेन इट इज व्हाइटिश एंड रेडिश इट विल बी मोर सोलोन, थोड़ा सूजन होगा। ब्लैकिश में थोड़ा कहते हैं ना वो हो जाएगा, सूजन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा, थोड़ा पतले हो जाएंगे। अच्छा, वात पित्त कफ जैसे मैंने बता दिया। नाउ गैप अगर आ गया है, अगर गैप आ गया है तो क्या घुटने बदलवाने पड़ेंगे? देखो गैप फिल हो सकता है क्या, पहली बात हम इस पे देखते हैं। घुटने बदलवाने से इलाज तो नहीं होगा, आपके घुटने तो ठीक नहीं होंगे, आपने रिप्लेस कर दिया। जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, उसमें आजकल ये चीज बहुत देखा जा रहा है। घुटने खराब हैं, घुटने बदल दो, किडनी खराब है, किडनी बदल दो, लिवर खराब है, लिवर बदल दो, हार्ट खराब है, हार्ट बदल दो। तो एक बात तो सिद्ध होती है कि ठीक तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक तो कुछ, आदमी खराब है, आदमी बदल दो, तो वो इसी बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू करेक्ट इट। दूसरा पार्ट, क्या रीजनरेशन बढ़ाया जा सकता है बॉडी का? 100% बढ़ाया जा सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और बहुत सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आपके बॉडी में रीजनरेशन होता ही है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को और पहले जो क्वेश्चन बताया, अगर आपका बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा फूड को, तो रीजनरेट नहीं कर पाएंगे आपके ऑर्गन्स और जॉइंट्स। तो अगर आपको रीजनरेशन करना है तो मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको दर्द ठीक करना है तो वहां मलहम लगा लो, स्प्रे कर लो, कोई दर्द की गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा, मगर रीजनरेशन और खराब हो जाएगा। क्योंकि आपके बॉडी में दर्द कम करने की गोली प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके शरीर में रीजनरेशन फैक्टर को बढ़ाने का एक नियम है, उसको काट के आपकी दर्द की गोली काम करती है। तो रीजनरेशन को कम करने से घुटने तो कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, बहुत जरूरत पड़े तो आप पेन किलर ले सकते हैं या कुछ पेन किलिंग ऑयल या जेल या स्प्रे लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। तो मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा? वो कुंभक से ठीक होगा। कुंभक में ही मेटाबॉलिज्म ठीक करने के फॉर्मूलेज हैं जो कि हम आपको सिखाते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाइटिश कोई कफ प्रकृति का अगर इंसान है तो वहां पे स्टिफनेस देखा जाएगा घुटने में। घुटने मुड़ने में तकलीफ होगी, स्टिफनेस होगा, लेकिन थोड़ा गर्म करेंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब कुंभक गर्म करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? अगर कुंभक कर रहे हैं, आप अपने साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। थोड़ी देर सांस रोको अपनी कैपेसिटी से, 15 मिनट के आसपास में रोकते जाइए, इनहेल होल्ड एक्सेल, इनहेल होल्ड एक्सेल करते जाइए, आपको पसीना आ जाएगा। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड देन ट्राई टू सी इफ योर जॉइंट्स आर बिकम फ्लेक्सिबल और व्हाट। आप 15 मिनट कुंभक करो, आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट बॉडी का जो है वो बढ़ता है और उसकी वजह से कफ हिस्सा जो कि ठंडा हो जाता है और अकड़ जाता है, वो गर्म होता है, सॉफ्ट हो जाता है। आप थोड़ा सेक लगाएंगे तो भी आपका घुटना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा मूवमेंट आसान हो जाएगा। बट बाहर से सेक लगाना ट्रीटमेंट नहीं है ना, इट्स अ लिटिल मैनेजमेंट। थोड़ा नहीं हो रहा, बाहर से कर लिया, मगर अंदर से हीट पैदा करना ही तो ट्रीटमेंट है। तो अगर आप ये देखें कि स्टिफनेस आ रही है बॉडी के अंदर कहीं पर भी, किससे ठीक होगा? कुंभक से ठीक हो जाएगा। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करते जाएं, आपके बॉडी का मेटाबॉलिक हीट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके बॉडी का, जिसे कहते हैं थर्मल रेगुलेशन, बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण स्टिफनेस चली जाएगी। एक चीज आप खास करके कफ प्रकृति वाले देखेंगे जिनको कि खास करके एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता, वो बड़े आसानी से डाइजेशन उनका अच्छा हो जाता। ना थर्ड पार्ट, रेडिश हो गया, इसका मतलब आपके लिवर पे बड़ा इंपैक्ट है और टॉक्सिन बन रहे हैं आपके शरीर में।
सूजन अगर है, रेडिश कलर का सूजन, टॉक्सिन बन रहे हैं आपके शरीर में, यानी आपका लिवर वीक हो चुका है। दवाई खा खा के और उसको लिवर को आपने काफी स्ट्रेस में डाल दिया, तो वो फैटी लिवर बन जाता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसमें T3 T4 ठीक से नहीं बनता आपके बॉडी में, जैसे थायराइड कंडीशन हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसकी वजह से आगे हो जाता है। तो लिवर को सपोर्ट अगर आप करें और बॉडी का टॉक्सिन निकालने के लिए कोई प्रोसेस करें, ये दो काम अगर आप करेंगे तो आपका ये पता चलेगा कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, जो रेडिश इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक हो जाएगा। और क्या लिवर को कैसे करेंगे? तो किसी का लिवर अगर खराब हो ना, ऐसे बंदे जिनमें रेडिश कलर का या इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, तो उनकी सांस को जरा ध्यान से सुने, कैसी सांस ले रहा है वो इंसान। आपको पता चलेगा वो सांस लेता है लेकिन छोड़ता बड़ा लंबा है। वो लेता छोटा, इनहेल छोटा कर रहा है, लंबा छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी भी खुद लिवर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो एक फॉर्मूला बना दिया हमने। क्या बनाया फॉर्मूला? कि अगर आप 1 यूनिट इनहेलेशन करें, 4 यूनिट को का रोक लें, और 2 यूनिट का, जैसे 1 यूनिट 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, अगर इस तरीके से आपको कुंभक करवा दिया जाए तो आपका लिवर पे स्ट्रेंथ आने लग जाएगा, है ना, लिवर में स्ट्रेंथ आएगा। दूसरी बात है, इससे टॉक्सिन बॉडी का निकलना शुरू हो जाता है, तो आपके बॉडी की अंदरूनी सफाई हो जाएगी, है ना। अगर उसके कारण अब बहुत टॉक्सिन है तो निकलना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आप देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज है कूलिंग डाउन, थोड़ा बॉडी का करेंगे तो वैसे भी टॉक्सिन वो निकालता है। वो प्रोसेस हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं। नाउ दीज आर फॉर्मूलाज। किडनी खराब हुआ तो क्या फॉर्मूला डालना है, मगर एक बात ध्यान रखिए, आपका लिवर बिना किडनी के काम नहीं करता, आपकी किडनी बिना हार्ट के काम नहीं करती, आपका हार्ट बिना लंग्स के काम नहीं करता, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक अप्रोच, अगर आप केवल लिवर को ठीक करेंगे तो बॉडी ठीक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरी चीज खराब है तो वो लिवर को ठीक होने नहीं देगी। इसीलिए प्रिसाइज ट्रीटमेंट चाहिए, मगर होलिस्टिक ट्रीटमेंट साथ में चाहिए। तो हम आपको सिखाते हैं एक मॉड्यूल जो जेनरिक होता पहले, जो आपके बॉडी पे होलिस्टिकली काम करता, वो साथ साथ में फिर कस्टमाइजेशन हम आपको देते हैं, स्पेसिफिक प्रिसाइज ट्रीटमेंट भी साथ में जोड़ देते हैं उसके। दैट इज हाउ इट बिकम्स अ कंप्लीट थेरेपी। वो कि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, केवल एक एस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया, केवल एक एस्पेक्ट एक्सप्लेन किया मैंने, और भी बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके बाद रुकूंगा, बिकॉज इट शुड नॉट बिकम अ यूनिवर्सिटी क्लास ना। आप देखिए कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, आप ठीक तो नहीं होने वाला है ना। थोड़ी सी बॉडी पे काम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। दूसरा एस्पेक्ट, आपको मालूम है ग्रेविटी नीचे खींचती है आपको। आजकल स्ट्रेस और डिप्रेशन लोगों में बहुत है। इसका मतलब क्या? भारी फील होता, बॉडी भारी फील होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खींचने में तकलीफ है, काम करने में बोझ लगता। इसका मतलब आपके शरीर में नीचे वाला पुल फैक्टर ज्यादा है ग्रेविटी की तरफ में, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपान। लेकिन ऊपर उठने वाला उदान फैक्टर वो कम हो गया। भाई देखिए, एप्पल नीचे गिरता, न्यूटन ने डिस्कवर किया ग्रेविटी। उसके पहले तो ग्रेविटी थी नहीं। सेब नीचे गिरा पेड़ से, मगर पेड़ तो ऊपर उठ गया। ये किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? आप लंबे हो जाते हैं ऑपोजिट टू ग्रेविटी, तो आप कोई जोर लगा रहे होंगे, कोई फोर्स लगा रहे होंगे, कोई बल लगा रहे होंगे ऑपोजिट टू ग्रेविटी, उसे उदान कहते हैं। वो कमजोर हो गया। अगर उदान बढ़ा दें तो आपके जॉइंट्स पे लोड कम हो जाएगा। आजकल स्लिप डिस्क, स्पाइन का इश्यू बहुत आ रहा है, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, ये सब इश्यूज बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या आ रहा है? वेरिकोज वेन, खून ऊपर नहीं जा पा रहा, वेरिकोज वेन, ड्रॉप फुट, जो आपके टखने हैं वो आपका लोड ही नहीं ले पा रहे। कमर का इश्यू तो जानते ही हैं बहुत ज्यादा, और घुटने का इश्यू बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नीचे का लोड तो बहुत है, ऊपर का लोड नहीं है। ऊपर उठाने का फोर्स आपके बॉडी में कम है। इसीलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन को जोड़िए आपके घुटने की प्रॉब्लम से।
तो आपके बॉडी में अगर खुशी आपके अंदर कम है, आपके शरीर के अंदर, यानी आप बबली फील नहीं करते, आपको काम करने में मन नहीं लग रहा, आप अंदर खुशी फील नहीं कर रहे अपने आप ही, तो क्या है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन है। दुनिया में एपिडेमिक है मेंटल डिजीज, 90% से ज्यादा लोगों को मेंटल इश्यूज है, मगर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि मालूम ही नहीं है होता क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे। लेकिन उदाहरण को अगर बढ़ा दें कुंभक से, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये जॉइंट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो एकदम से कम हो जाएगा। तो आपने सपोर्ट कर दिया। एक लास्ट पार्ट बता रहा हूं, उसके बाद मैं रुकूंगा क्योंकि मैं और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं उसको, मगर क्या है कि उससे आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला। एक और फैक्टर आपके बॉडी का टॉलरेंस की बात करता है। सेम प्रॉब्लम 10 इंसान को डाल दीजिए, सेम कंडीशन, सेम प्रॉब्लम, उनमें से जो ज्यादा रो रहे होंगे ना, वो 4 बंदे बहुत रो रहे होंगे, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। 2 बंदे इतना नहीं रो रहे होंगे, उनमें से 2 बंदे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी नहीं रो रहे होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, उनको सेम प्रॉब्लम है पर इतनी परेशानी नहीं क्योंकि झेल पा रहे हैं। रेड लाइट पे आपने बच्चे देखे ना, छोटे बच्चे भीख मांगते हुए, वो बारिश में भी वही मिल जाएंगे, ठंड में मिल जाएंगे, गर्मी में मिल जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बड़े प्रोटेक्टिव बच्चे जो है ना, जरा सी बारिश हुई, सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। तो क्या फर्क है टॉलरेंस का। अगर अपने बॉडी का आप टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो आपके दर्द सहने की क्षमता, बॉडी का रिकवर करने का स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो ये काम तो करना ही चाहिए ना सबको। भाई हमने कंडीशन खराब कर दी, फूड खराब कर दिया, मेडिसिन इतना केमिकल बॉम्बार्डिंग कर दिया बॉडी को, एनवायरनमेंट खराब कर दिया, ये तो आप अलग मतलब सुधार नहीं सकते ना एकदम से। आज अगर एनवायरनमेंट ठीक करेंगे तो 200-300 साल लग जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे खराब कंडीशन में, टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, वो हमने बढ़ाया नहीं। अब सेम शुगर लेवल किसी का 200 है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मगर किसी का 400 है तो भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्या फर्क है, टॉलरेंस का फर्क है। तो टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप 10 किलो का वेट उठाइए। कैसे वेट उठाते हैं, सांस रोक के वेट उठाना पड़ेगा। फिर 15 किलो उठाओ। क्या बढ़ाना पड़ेगा उसको टॉलरेट करने के लिए, 15 किलो को सांस को ज्यादा रोकना पड़ेगा। यानी कि टॉलरेंस आपका सांस रोकने की क्षमता है। बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, और भी चीजें हैं मगर ये कोर मैं बता रहा हूं केवल, इसको आप समझ सकते हैं। तो आप ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी भी अगर बढ़ा दें अपने बॉडी की, तो भी अपना बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, तो सेम सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम कम होगी। 3 तरीके से बताया कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, और भी तरीके हैं, मगर अब देखिए मैंने जितना भी तरीका बताया बिल्कुल अलग बताया, मगर मैं आपको 10 और तरीके अलग बता सकता हूं। तो इसका मतलब हमें बहुत काम करना है हेल्थ के ऊपर, हमें बहुत काम करना है। अभी जो करंट सिनारियो है, करंट काम, जितना भी रिसर्च वर्क और ये कुछ हुआ है ना, वो बिल्कुल भी नाकाफी है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसके कारण हम बीमारी बढ़ा रहे हैं, कम कर नहीं रहे। अगर आपने इन्वेस्ट किया डिजीज में पिछले 100 साल में, तो डिजीज बढ़ गए। जहां आप इन्वेस्ट करते हैं ना वो बढ़ जाता है। तो आपने बीमारी में इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। अब आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं है, कभी हेल्थ बढ़ेगा। Okay. The next question is from SS, ankylosing spondylitis and fibromyalgia. 2 चीज बताई इसके अंदर, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अभी एक चीज बताया मैंने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो आप सवाल क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्या आपके शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक पेड़ में से, एक पेड़ की ना एक हरी भरी टहनी आप तोड़ लो और उसको 15 दिन, 20 दिन, 2-3 हफ्ते धूप में छोड़ दो। आपको 2 चीज करना है, टेस्ट करना है बस। जब आपने डंडी तोड़ी तो उसकी लचक कितनी थी,
कितना बेंड हो सकता था, उसके बाद 3 हफ्ते उसको धूप में छोड़ के देखो वो कितना बेंड हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे, आप भी जानते हैं ना इस चीज को। देखिए आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपने देख कहीं और रहे, कुछ पढ़ लिख लिया। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। तो आपको अपनी समझदारी को इस्तेमाल करना है, एजुकेशन को नहीं। तो क्या हुआ, इन 3 हफ्तों में वो इसका लचक कम क्यों हो गया और सूख क्यों गई, वो टहनी सूख गई। सूख क्यों गई, उसका पानी निकल गया ना, धूप में आपने छोड़ा तो उसका पानी उड़ गया, तो हार्ड हो गई और उसकी लचक कम हो गई। फाइब्रोमाइल्जिया वही है, आपके शरीर का पानी का होल्डिंग कैपेसिटी जब कम होगा, रीजनरेशन जब कम होगा, मेटाबॉलिज्म और वाटर होल्डिंग ये दोनों को जोड़ दो तो रीजनरेट नहीं होगा और सूखेंगे मसल्स, तो उसको आपने नाम दे दिया फाइब्रोमाइल्जिया। ये ग्रीको रोमन शब्द से आप घबराएं नहीं, पहली बात तो, क्योंकि ये शब्द लगा के आज तक कोई इंसान ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। आपको ग्रीको रोमन शब्द में ट्रेन किया जाता है और कहते हैं कि ठीक नहीं होता, और फिर भी आप लाइन लगा के वहां पे अपना ठीक होने के लिए जाते हैं। तो ये भी सोचना पड़ेगा हमको, इससे ज्यादा समझदार हैं आप। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों कम हो रही है आपके बॉडी की। अब इसको मैं दोनों चीजों के साथ में जोड़ रहा हूं, दोनों चीजों को साथ में जोड़ रहा हूं। तो शुरुआत में मैंने क्या बताया, जब आप गलत चीज शरीर में डालेंगे तो इसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो मेटाबोलाइट्स यानी आपका शरीर इसको इस्तेमाल ठीक से नहीं करेगा, टॉक्सिन्स बनेंगे ज्यादा, और उसको पानी में घुलो के ही, पानी में डिसॉल्व करके ही शरीर बाहर निकालता है। तो 2 जगह लोड पड़ता है आपके बॉडी पे, लिवर पे और किडनी पे। क्या ये दोनों प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं दुनिया में? हाँ, आप डायलिसिस सेंटर ढूंढ लीजिए गूगल करके कि कितने डायलिसिस सेंटर नए खुले, कितने लोगों को किडनी प्रॉब्लम, तो आपको पता चलेगा बहुत लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लिवर पे और किडनी पे हम लोड डाल रहे हैं जब भी गलत चीज डालते हैं शरीर के अंदर, और इसको ठीक करने के लिए कोई काम नहीं करता। तो लिवर पे लोड आएगा तो वो टॉक्सिन ज्यादा बनाएगा, उसको पानी में आपकी बॉडी डिसॉल्व करेगी और किडनी के थ्रू निकालने की कोशिश करेगी। तो आपके बॉडी का पानी ज्यादा इस्तेमाल होता, तो आपके बॉडी में अवेलेबल पानी, शरीर में पानी में ही मेटाबॉलिज्म होता, पानी में ही बनती है कोई चीज, पानी में ही ट्रैवल करती है। ब्लड क्या है? वाटरी मीडियम है। हॉर्मोन्स भी आपके ब्लड में जाके ट्रैवल करते हैं, और लिम्फ जो है वो भी लिक्विड ही होता है। लिम्फ 2 तरीके की मूवमेंट होती है, लिम्फ और ब्लड। तो पानी ही कम हो गया तो एक तो ऑर्गन में सुखावट आएगी, ठीक है ना। वाटर कहीं पे आपका अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा बॉडी में ठीक से तो ड्राइनेस आता है। ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि थायराइड के लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारी स्किन ड्राई हो गई। डायबिटीज के लोग कंप्लेन करते हैं हमारी स्किन ड्राई हो गई। हार्ट प्रॉब्लम भी इसलिए आ रही है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बॉडी की कम है। और ब्लड प्रेशर कम कैसे कर रहे? पानी निकाल के बॉडी से। तो गलत तरीका अगर अपनाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये, अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बॉडी की कहीं और इस्तेमाल होने लग जाता है, अवेलेबल कम हो जाता है पानी। दूसरा काम क्या होता है, इम्यून ट्रिगर्स हमेशा बढ़ते हैं और कम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, रिस्क आ रहा है बॉडी में, तो बार बार इम्यूनिटी उठ रही है, जा रही है, डाउन हो रही है, उठ रही है, डाउन हो रही है। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। फिर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा, आप कहेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये ठीक नहीं होता। बस फिर क्या करेंगे? तो इसको ठीक कैसे करेंगे? और क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है? 100% ठीक होता, बड़ी आसानी से ठीक होता। आपको एक एग्जांपल दूं मैं। जब आप बहुत धुआं देने वाले ट्रक के पीछे अगर जाते हैं और धुआं है, पोल्यूशन है, तो आप क्या करेंगे? सांस ज्यादा लेंगे, कम लेंगे? नाक बंद कर लेंगे ना, सांस कम लेंगे, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। अगर आप सांस कम लेंगे तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन कम होता है, रीजनरेशन आपके बॉडी में कम होता है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, वो ट्रक के पीछे ही पोल्यूशन था कि हर जगह पोल्यूशन है? हमने पोल्यूशन बढ़ा दिया, एटमॉस्फेयर का कंटेंट चेंज कर दिया हमने। तो क्या नेचुरली आप सांस कम नहीं ले रहे?
चाहे कहीं भी हो, आप घर में हो, बाहर हो, हर जगह तो सेम एनवायरनमेंट है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस, तो आप तो नेचुरली आपके बॉडी में रिजेनरेशन कम हो रहा है, तो इसीलिए ये कंडीशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। देखो हार्ट अटैक भी बहुत बढ़ेगा, कैंसर के केसेस बहुत बढ़ेगा, डायबिटीज और थायराइड तो एपिडेमिक बन ही रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक हो ही चुका। तो पिछले 300 साल में हमने हर एरिया में ग्रो किया, डेवलप किया। एक एरिया में हमने डेवलप नहीं किया, नीचे चले गड्ढे में चले गए। वो एरिया क्या? हेल्थ। वो हेल्थ है, और उसको कहते हैं बहुत डेवलपमेंट कर लिया हमने, बहुत एडवांस हो गए, मॉडर्न कहते हैं। अरे हम तो प्रिमिटिव हो गए, मॉडर्न कहां हुए? हेल्थ ही खराब कर लिया हमने। तो कहने का मतलब क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है। सुबह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका पीक पे है, शाम को बिल्कुल ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है आपके बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो कितने आसानी से हो रहे हैं, कितने अच्छे से हो रहे हैं, बॉडी का फ्लो कितना अच्छा है। अगर इफ यू डू एन इंटरनल वर्क, अगर अंदरूनी काम करेंगे, कुंभक जैसे है, अंदरूनी काम करेंगे तो ठीक कर सकते हैं आप। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इट माइट टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि जो बीमारी का मोमेंटम अलग अलग है। किसी का 20 साल के, किसी का 30 साल से बीमारी, किसी का 10 साल से, किसी का 1 साल से ही है। तो 1 साल वाला तो जल्दी रिकवर करेगा, मगर 20 साल वाले को रिकवर करने के लिए कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। पर क्या और कोई ऑप्शन है? क्या कोई और ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम वर्किंग अपॉन दिस बॉडी? तो एक बात और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट मेक ए बॉडी अ क्रिमिनल। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाए। लाखों सालों से इसने अपने आप को संभाला है, डिजीज क्रिएट नहीं किया, मगर आप क्रिमिनल की तरह इसके साथ में बिहेव करते हैं। जब ये शरीर वायरस को मारना चाहता है, कोरोना के वायरस को या किसी और वायरस को मारना चाहता है, तो टेम्परेचर बढ़ाता है अपना, जिसे हम कहते हैं फीवर। 5 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो कोई भी वायरस मर जाएगा, मगर आप बढ़ाने नहीं देते इसको टेम्परेचर। आप पैरासिटामोल खा लोगे, उल्टी आएगी, उल्टी बंद कर दोगे, दस्त आएगा, दस्त बंद करो, शरीर को सफाई नहीं करने दोगे। पेन आएगा आपके बॉडी को ठीक करने के लिए, तो पेन काट दोगे, उसको ठीक नहीं करने दोगे। उसके इम्यून को, रेस्पॉन्स को आप सही से काम ही नहीं करने देते। इसको स्ट्रांग करने की बजाय हमने वीक कर दिया। बॉडी ब्लड में शुगर जाता है, डालता है, या डालता नहीं है, ब्लड में अगर ज्यादा शुगर आ गया, प्यास लगा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके शुगर निकाल देगा, मगर आप एक मेटफॉर्मिन खा के शुगर को ऑर्गन में घुसा दोगे, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो बॉडी को क्रिमिनल ना बनाए, ये बॉडी ही आपको ठीक कर सकता है। अगर इसके रिकवरी मैकेनिज्म को स्ट्रांग कर दें, अगर इसके ऑर्गन फंक्शन को आप स्ट्रेंथ दें, अगर इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, लिम्फ का, हार्मोन का, उसको स्ट्रेंथन करें, तो बॉडी किसी भी बीमारी से निकाल देगा आपको। और बॉडी के अंदर काम करने का मतलब आपको कुंभक करना पड़ेगा। बाहर तो आप एक्सरसाइज कर लोगे तो चलेगा, मगर एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे और हार्ट कमजोर हो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, डैमेज हो जाएंगे आपके ऑर्गन्स। तो पहले आप अपने ऑर्गन का स्ट्रेंथ बढ़ाओ, उसके बाद कुछ भी करो इस बॉडी के साथ में, ये बॉडी हर चीज झेल जाएगा। इसका टॉलरेंस बहुत हाई हो जाता है। ये किया जा सकता है, और ये कुंभक से किया जा सकता है। आप अपने जेनेटिक्स को बदलना है तो कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का। आपके स्टेम सेल्स को अगर एक्टिवेट करना है, जैसे ऑर्गन रिवाइवल हो, टिश्यू रिवाइवल हो, तो भी आप कुंभक से वो काम कर सकते हैं। तो जरा प्लीज ओपन अप योर माइंड। ये ह्यूमन बॉडी बहुत प्रेशियस गिफ्ट है हमारे लिए, इसको क्रिमिनल नहीं बनाते। Leena ma'am talks about, I have swelling and pain in feet since more than 3 years. अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगेन आई कैन एक्सप्लेन इट इन 100 डिफरेंट वेज। एक तरीका जिसको कि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए, आपके बॉडी के अंदर कहीं भी रिटेंशन होता है ना, फ्लूइड का रिटेंशन, रुकावट,
रुकावट, तो इसका मतलब क्या है, आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं, बॉडी में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ठीक से नहीं जा रही। इसका एक और रिलेशन मैंने पहले आंसर किया था, उदान पक्ष वीक हो गया, नीचे ज्यादा खिंच रहा है, ग्रेविटी के लिए अवेलेबल है आपका बॉडी का फ्लूइड, ऊपर नहीं उठ पा रहा, वो स्ट्रेंथ कम है आपके बॉडी में, उदान वीक हो गया तो भी स्वेलिंग आएगी नीचे के एरिया में। लेकिन फैलना, आपके शरीर में एक फैलने का आयाम है जिसे कहते हैं समान। तो बॉडी में कोई चीज फैलनी चाहिए, हर बॉडी के पार्ट्स में प्रोपोर्शनेट वो उसको फैलना चाहिए। ये समान पक्ष का मतलब क्या, आपको प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, इसका मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा। जो समान जो पक्ष है वो बॉडी में किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करता है। अच्छा, इसके ऑर्गन को भी अगर मैं कोरिलेट करूं तो किडनी इसमें हेल्प करता, लिवर इसमें हेल्प करता, और आपका हार्ट भी इसके अंदर हेल्प करता। मगर अगर हम फ्लूइड की बात करें तो उसमें किडनी एक मेजर पिवट है। तो अगर किडनी जवाब देने लग जाएगी तो भी आप, अगर आप देखेंगे किडनी कमजोर होने लग जाएगी तो आपके पांव जो है उसमें सूजन ज्यादा आने लग जाएगा। एक पार्ट। दूसरा पार्ट, कभी कभी ये डिटेक्ट नहीं होता, केएफटी आप करवाएंगे, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वेरिकोस वेन भी इसी के अंदर आ रहा है, वेरिकोस वेन भी मैं इसी के अंदर बता रहा हूं, क्योंकि आपका खून जो है वेन्स में ऊपर नहीं उठ पा रहा तो नीचे वो ज्यादा जमा हो रहा है। इसमें दो कारण है, जैसे मैंने बताया, व्यान पक्ष, और दूसरा है इसके वाल्व कमजोर हो सकते हैं आपके वेन के, वो भी व्यान पक्ष का ही हिस्सा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर जो है वो कैसे होता है, उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये मेरे अंदर कमजोर है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट इनहेलेशन, 4 यूनिट होल्ड, 2 यूनिट एक्सहेलेशन। अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसको कहते हैं व्यान। अगर तीनों को कंटिन्यूसली किया जाए, लगातार किया जाए विदाउट अ ब्रेक, तो इसको व्यान कहते हैं। सो अगर आप चेक करें, आप मैक्सिमम इनहेल करके देखें कि आप कितना इनहेल कर सकते हैं, उसके 4 गुना रोक के फिर 2 गुना एक्सहेल करने की कोशिश करें विदाउट एनी डिफिकल्टी, आप में से एक भी नहीं कर पाएगा। तो व्यान पक्ष सभी का कमजोर है, ये प्रॉब्लम तो सभी को कहीं ना कहीं, घुटने की प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम, या पाँव में नर्व का इश्यू हो गया, डिपोजिशन हो गया, कंट्रोल कम हो गया, ये तो होने ही वाला है, क्योंकि आप उस पर काम ही नहीं कर रहे जो कि एरिया आपके बॉडी का वीक हो रहा है। तो हम 3 चीज सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, पहला अंगन्यास, दूसरा मर्म विन्यास और हठ विन्यास, और तीसरा कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट सिखाते हैं, तीसरा पार्ट क्या, व्यान, क्रिया, कुंभक। आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को सही करने का तरीका, व्यान, क्रिया, कुंभक, वो हम सिखाते ही हैं। इसलिए मैंने बताया कि इन सब का को हैंडल करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में चीजें डाली ही हुई हैं। इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम। तो अगर वो ठीक हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो ठीक हो जाए आपके बॉडी का, तो आप देखेंगे कि जहां भी डिपोजिशन है कहीं पर भी बॉडी में, चाहे वाटर रिटेंशन हो रहा हो, चाहे किसी और लिम्फ का रिटेंशन हो रहा हो, चाहे गैस का रिटेंशन हो रहा हो, तो वो ठीक हो जाता है। एक चीज जो कुंभक करने वाले लोग हमारे साथ में शेयर करते हैं, कुंभक करने के बाद कहते हैं बहुत गैस निकलती है, या मेरा पेट ज्यादा साफ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आपके शरीर में फैलावट, कोई चीज जो फैल रही है आपके शरीर में, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। जब ये सही कर देंगे ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके पाँव में जो भी सूजन वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो व्यान पक्ष अगर ठीक करेंगे उसको ठीक हो जाए, उदान पक्ष ठीक करेंगे ठीक हो, उसके लिए हमने प्रोसेस डाला ही हुआ है, 2 तरीके से आपको बता दिया। वेरिकोस वेन इसीलिए आप करेंगे, वेरिकोस वेन ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पे लोग आते हैं वेरिकोस वेन लेके, कहते हैं कि मेरा ठीक हो गया, राइट। और भी मैं तरीके से इसको समझा सकता हूं, मगर क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है चीजें, मगर फायदा कुछ नहीं होने वाला आपको समझ में भी कितना आएगा वो भी डाउट है। Naresh sir talks about muscular dystrophy. My muscles are wasting. मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वंस अगेन मसल्स आर वेस्टिंग, मसल्स वेस्ट नहीं होते साहब। ये अंग्रेज जो है ना, ये लाइफ को समझते नहीं।
अगर समझते तो ये सब प्रॉब्लम ठीक कर देते। वो नाम कुछ भी रख देते है ना। जीवित पेड़ को वुड्स बोलते हैं, जंगल को वुड्स बोलते हैं। तो ये सब गलत धारणा है। मसल वेस्ट नहीं होता, आपका शरीर रीजनरेट नहीं कर पा रहा, आपका रीजनरेशन स्ट्रेंथ कमजोर है। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ लो। उसको कनेक्ट कहां से कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कनेक्ट करो। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक है, मेटाबॉलिज्म वीक है तो रीजनरेट नहीं हो पाया। मसल तो हमेशा डेड होते ही है ना, स्किन तो डेड होती ही है, मगर दोबारा से रीजनरेट भी तो होती है। अब अगर रीजनरेशन ही कम वीक है तो मसल रीजनरेट नहीं हो पाएगी, तो कैसे वो काम कैसे कर पाएगा? तो रीजनरेशन को कम क्यों कर दिया? क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक कर दिया। वो कैसे वीक कर दिया वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। इफ यू करेक्ट योर मेटाबॉलिज्म, मसल्स विल बिकम फाइन, यू विल हैव स्ट्रेंथ इन योर मसल्स। दूसरा पक्ष एक बार बताता हूं, आयुर्वेद के टर्म्स में बताता हूं। जो मसल्स है ना, वो बेसिकली आपका पित्त पक्ष है, इसको पित्त कहते हैं। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म अगर ठीक नहीं होगा, तो आपके बॉडी में मसल्स ठीक नहीं काम कर पाएंगे। क्रैम्प्स होते हैं कई लोगों को डिस्ट्रोफी हो जाएगी। तो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म को ही हम पित्त पक्ष कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि कुंभक उसको कंट्रोल करता है। कुंभक वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो अगर आप पित्त पक्ष को कंट्रोल कर पाएंगे तो भी आपके मसल के रीजनरेशन में आपको मदद मिलेगी। पित्त पक्ष के साथ में आपका ब्लड भी जुड़ा हुआ है, आपका लिवर भी जुड़ा हुआ है। अब इसको इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर क्या है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने या डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंपल सी बात, रीजनरेशन का प्रोसेस आपके बॉडी का अगर आप ठीक करेंगे तो आपका ये पार्ट ठीक हो जाए। अच्छा, कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे दें? तो आपके पास दो हाथ हैं, एक हाथ से आप वेट उठाइए, 5 किलो का ऐसा वेट उठाओ, रोज के रोज एक हाथ से वेट उठाओ, दूसरे हाथ से मत उठाना। तो आप क्या देखेंगे, 2-3 हफ्ते के बाद में एक हाथ के मसल्स बहुत बढ़ गए और एक हाथ के मसल वैसे के वैसे। तो आपने मसल्स बढ़ाने के लिए किया क्या? वेट उठाया। मगर वेट कैसे उठाया? असली सवाल कहां पे है? वेट नहीं, वेट कैसे उठाया? आपने सांस रोका, बार बार सांस रोकते गए जब आप वेट उठा रहे थे। अंदर अगर ऑब्जर्व कर देखें तो मसल जनरेट कैसे हुआ, रीजनरेशन का प्रोसेस कैसे बढ़ा वहां पे, कि आपने सांस रोक के उस जगह पे ट्रिगर दे दिया वेट के थ्रू, तो मसल बढ़ गए। कुंभक से मसल बढ़ सकते हैं, कुंभक से ही बढ़ते हैं। और किस तरीके से बढ़ते हैं? और तो कोई तरीका ही नहीं है मसल को स्ट्रेंथ देने का और मसल्स को बढ़ाने का। तो ये मैं आसान शब्दों में कह रहा हूं, ये सब आप जानते ही हैं। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, मगर मैं बहुत क्लमजी वर्ड्स, बहुत ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा तो नहीं समझ में आए। तो ये बिल्कुल आसान तरीका समझने का। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। एवरी वन ऑफ यू हैव लाइफ सेंस। आप जब पैदा हुए तो आपको लाइफ का सेंस है ही। पढ़ने के कारण आप कुछ और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, वो वैसे फिर नहीं समझ में आने वाला है। ये सिंपल तरीका है, कुंभक करेंगे, मसल से रिलेटेड कोई भी इश्यू जो है वो हैंडल हो जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन। Okay, from the participants, Niranjan Kumar sir, you can ask your question. I have unmuted you. Niranjan Kumar sir. Vivek Pathak sir, you can ask your question. Vivek Pathak. स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। I have insomnia and anxiety and hello. हाँ जी, बोलिए बोलिए, आई कैन हियर यू। I'm doing yoga, I'm doing meditation, I'm doing pranayam, but nothing is helping me. So I wanted to understand Okay. whether
ओके, आई विल एक्सप्लेन इंसोम्निया। पहले इंसोम्निया एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, पहले इंसोम्निया एक्सप्लेन करते हैं। इंसोम्निया क्यों होता है बॉडी में? अच्छा, पहली बात, सोने के लिए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्लीपिंग? सोने का मैकेनिज्म क्या है? दैट यू हैव टू लीव योर बॉडी। अगर आप अपने बॉडी को पकड़ के रखेंगे ना, You are not audible, Swami ji. स्वामी जी आप म्यूट हो गए। यार, आप म्यूट पे हो गए। ओके, तो बॉडी को जब तक छोड़ नहीं पाएंगे सो नहीं पाएंगे। अच्छा, बॉडी को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए? तो जरा एक एक्सपीरियंस जो कि सभी लोगों का होगा उसको ऑब्जर्व करता है। बस में आप खड़े हैं और आपने कोई पोल पकड़ के रखा है बस का, और बस ऊबड़ खाबड़ जगह में जाती है। जैसे ही ऊबड़ खाबड़ जगह में जाती है तो आपका ग्रिप जो है पोल पे वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। आप ज्यादा पकड़ लेते हो ना पोल को, क्योंकि खतरा है तो आप पकड़ लेते हो ज्यादा टाइट। जब बहुत स्मूथ होता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ऊबड़ खाबड़ है तो आप पकड़ लेंगे। तो आपके बॉडी में फंक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो रिस्क होगा आपके बॉडी के अंदर। इसीलिए एंजाइटी है, और एंजाइटी होगी तो बॉडी को आप छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि एंजाइटी इज अ रिस्क ना, इज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क। तो आप अपने बॉडी को पकड़ के रखते हैं ना। बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं होते, ध्यान दीजिए, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं होते। बॉडी का जो इकोसिस्टमिक प्रेशर है जिससे कि एक कंपल्शन होता है बॉडी को कुछ करने का, वही माइंड है। बॉडी का पूरा इकोसिस्टमिक प्रेशर जो कि बॉडी को कंपेल करता है किसी काम को करने के लिए, उसी को माइंड कहते हैं। तो जब आप होल्ड करेंगे बॉडी और माइंड को बहुत ज्यादा, क्योंकि रिस्क है, तो सोना तो मुश्किल है ना। जब बहुत ही खतरा आ गया कहीं पे तो नींद नहीं आती लोगों को ना। पहले डकैत आते थे गांव में तो लोग रात में जगे रहते थे। तो आपके अंदर डकैत आ गया तो आप कैसे सोएंगे? रिस्क आ गया तो कैसे सोएंगे? और रिस्क का मतलब क्या होता है? इम्बैलेंस हो ना। वो गाड़ी इधर उधर कर रही है, आपका हार्ट फंक्शन इधर उधर कर रहा है, आपका लिवर फंक्शन इधर उधर कर रहा है, आपका किडनी फंक्शन इधर उधर कर रहा है। यही चीज एंजाइटी एक इंप्लीकेशन के तौर पे अगर देखें बॉडी में तो यही है ना। एंजाइटी का मतलब तो यही है, हार्ट के बीट रेगुलेट नहीं है, ब्रेथ जो है वो बहुत उखड़ी हुई है, फंक्शन मेटाबॉलिज्म उखड़ा हुआ है। अगर है तो आप सोएंगे कैसे? क्योंकि आपका बॉडी तो रिस्क में है। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसे कई लोग हमारे पास आए जो कि सोने के लिए वो बोलते थे कि हमको 4, 5 या 6 एल्प्रेक्स खाना पड़ता था 0.5 मिलीग्राम। एल्प्राजोलैम खा के कहते थे 5-5, 6-6 हम खा लेते हैं। अब सोचो उनकी हालत क्या होगी। उन्होंने कुंभक शुरू किया और उन्होंने सारा छोड़ दिया ये, और वो कहने लग गए कि कुंभक करने के बाद हमने ऐसे सोए जैसे जिंदगी में शायद याद भी नहीं है पहले कभी ऐसे सोए हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो जो अपने को बचाने के लिए जब उबड़ खाबड़ हो रहा था तो अपने को बचाने के लिए आपकी बॉडी कर क्या रही थी? टाइट जो पकड़ा आपने, कैसे टाइट किया अपने बॉडी को? सांस रोका था ना उस टाइम पे। तो आपकी बॉडी अपने को बचा ही रही थी, आपने उसको सपोर्ट नहीं किया केवल। जब अभी भी एंजाइटी है तो आपकी बॉडी ये काम कर रही है। जब कोई आपको जोर से मुक्का मारने की कोशिश करे, अपने आप को बचाते के सांस रोक के टाइट कर लेंगे ना बॉडी को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये ऑटोमेटिक हो रहा है। आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे क्योंकि आपके आसपास में शायद कोई दुश्मन नहीं दिख रहा आपको। तो कहने का मतलब अगर आप कॉन्शियसली कुंभक करना शुरू करेंगे तो एनीवे ये आप इसको बैलेंस कर देंगे। जो ये इधर उधर हो रहा है ना, उसका टॉलरेंस क्रिएट कर देंगे अपने अंदर। तो वही चीज जो आपको अभी परेशान कर रही है परेशान नहीं करेगी। और साथ साथ में आप अपना बॉडी की फंक्शनैलिटी को भी रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, कंट्रोल करना शुरू कर देंगे।
तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे एंजाइटी चली जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके बॉडी में फंक्शनल रेगुलेशन होगा, बैलेंस होगा, इम्यूनिटी का बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक बैलेंस होगा। और आप देखेंगे कुंभक तो करना शुरू करें, आप वैसे ही सोने लग जाएंगे, चिंता मत करिए। अगर कुंभक करना शुरू किया तो घोड़े बेच के सोएंगे। तो इसी के साथ विल हैव टू स्टॉप। अच्छा, कुछ लोगों ने, मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। किसी को ट्यूबरकुलोसिस है। देखो, बॉडी किसी भी इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बॉडी का हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म अच्छा है, तो आप बहुत जल्दी वापस मतलब उससे बाहर आ सकते हैं। हमने ये देखा है कि कुंभक जो भी करते हैं उनके उनके अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको पता भी नहीं चलता। ऐसे में बहुत केसेस आपको बता सकता हूं। अभी करंट का केस बताऊं, एक बच्ची का केस बताता हूं। एक बच्ची, 12 साल की बच्ची, अभी इसको डेंगू हो गया, मगर कोई भी सिम्टम नहीं है। वो हमारे बच्चों के प्रोग्राम में उसने ज्वाइन किया था 3-4 हफ्ते पहले, और उसने शुरू किया और उसको डेंगू हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, सिम्टम ही नहीं है। ऐसे एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों केसेस बता सकता हूं जहां पे लोग बहुत इन्फेक्शन के कंडीशन में चले गए, उसके बाद उनको कोई सिम्टम नहीं हो और वापस आ गए, बिना दवाई लिए वापस आ गए, रिकवर हो गए, कोई एंटीबायोटिक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एंटीबायोटिक जिन्होंने लिया और साथ में कुंभक कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक के नुकसान से उनको काफी फायदा हुआ। ठीक है ना। किसी ने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अगर कंसेप्शन करना चाहते हैं, अपना नंबर छोड़िए, आपको सही प्रोग्राम के लिए हम सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट करेंगे। माइलिनेशन इज पॉसिबल, एज आई ऑलरेडी सेड कि न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है। ऐसे बहुत केसेस हैं जो कि पैरालिसिस, ड्रॉप फुट, माइसीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, फ्रोजन शोल्डर या इस तरीके का न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, यहाँ पे रिकवर होता है। ग्लूकोमा रिकवर हो जाता है, ग्लूकोमा आराम से रिकवर हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर बन रहा है एक्सेसिव आपके आंखों में। अगर प्रेशर कंट्रोल, ग्रेडियंट कंट्रोल में आपके आ जाएगा तो ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। ऐसे केसेस हैं जो को ग्लूकोमा ठीक हो गया कुंभक करने से। आपका प्रोग्राम में आने के लिए, वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका जीवन हेल्दी हो, सुखमय हो, ऐसी हमारी मनोकामना। Thank you so much, Swamiji. I'd like to ask everyone whose question was not taken, and some people were wanting to know about the specific issue. See, I'm especially answering Mr. Krishnan's question posted that no lamba chauda explanation. See, स्वामी जी जो है वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, इसीलिए वो एक चीज को इतना लंबा उनको करना पड़ता है, बिकॉज सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से बॉडी है। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका स्पेसिफिक डाउट है, स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, प्लीज पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड वील आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर। और विद दिस वील लाइक टू क्लोज, बट क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी होता है, जो स्वामी जी अलग अलग तरीके से बताते हैं, जस्ट टू गिव यू एंड जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हो क्या रहा है, हाउ इज दिस बॉडी एक्चुअली फंक्शनिंग। और बट हमें जो स्वामी जी भी बोलते हैं कि हमें जो एलोपैथिक का एक एजुकेशन कराया गया ना स्टार्टिंग से, बॉडी ऐसे फंक्शन करता है, वैसे फंक्शन करता है, अगर ऐसे ही फंक्शन करता है तो वो ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, इसीलिए स्वामी जी को लंबा चौड़ा बोलना पड़ता है। बट स्पेसिफिकली वी अंडरस्टैंड दैट आप सभी लोग जानना चाहते हैं वेदर दिस स्पेसिफिक इशू कैन बी क्योर्ड और नॉट, वो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, नॉट एन इशू। वी वोंट लीव इवन वन क्वेश्चन देयर, चाहे उसमें रात हो जाए या अगला दिन हम गए, विल आंसर टुमारो आल्सो, डू नॉट वरी। और नेहा, आप मेरा नंबर और अपना नंबर शेयर कर दीजिए अभी, इफ यू वांट टू स्पीक टू अस पर्सनली दैट कैन आल्सो बी डन। हमें आप कॉल कर सकते हैं, नेहा को या मुझे। With this, we'll close the session, and I'd like to again request all of you to please post your question in the
व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज स्पेसिफिकली आप आंसर चाहते हैं तो आप प्लीज वहां डालिए, हम आपको पूरा क्लियर तरीके से आंसर करेंगे। एंड विद दिस विल लाइक टू क्लोज। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार। Thank you so much and good night. Stay well.